सो आज हमारा क्लास होगा बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिशन। अंडर दैट सब हेडिंग ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम। When we read Old Testament, we will get there are many evidences which says that even in Old Testament the missionary work or the mission was present, और मिशन और जो सेवकाई पुराना नियम पढ़ने का समय हमको समझ आता है सेवकाई था, मिशन था, समझ आया। सो आई एम रीडिंग इन इंग्लिश फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। Old Testament readings provide enough materials to substantiate the ministerial duties of people of God in those days. There are three distinct ministries in the Old Testament mainly: prophetic ministry, priestly ministry, kingly ministry. So when we read Old Testament, we can see even in Old Testament ministry or the mission tasks are present, and there are main three sections or there are main three divisions when we with three divisions of ministry or mission in Old Testament. What are that? Prophetic, priestly, kingly. Under prophet how many names will come? अभी मतलब रिपोर्ट लिखने के लिए बोल रहा हूँ। अंडर प्रोफेट देयर आर मेनी नेम्स, अंडर प्रीस्ट देयर आर मेनी नेम्स। Which tribe used to do priestly ministry? Levi. Then in which book you will found all the priestly laws? कौन सा किताब में पुरोहित लोगों का नियम के बारे में पढ़ता है? लेविटिकस में। पक्का? किसी ने बोला इसलिए आपने बोला। Then kings, we have divided kings into two, क्योंकि राज्य दो भाग में विभाजन हुआ था। So there are kings from both sides, and God assigned them to do a particular mission, but at a point of time they did their own mission and God rejected them. राजा लोगों को भी परमेश्वर इसलिए नियुक्त किया परमेश्वर का सेवा को आगे लेकर चलने के लिए, फिर भी एक जगह पर ये लोग खुद का काम करना शुरू किया। परमेश्वर लोग क्या कर दिया? So when we studied Old Testament, we divided good kings and bad kings. Under good kings only इतना आता है, वो भी उसका अंत क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। So when we studied kingship and the laws and regulations about kings, beginning was good, end not good. So then three essential three essential ministries, that is prophetic, priestly and kingly ministry. And the people of Israel were called out community. What is mean by church? What is mean by church? Called out, yeah, assembly or gathered, or those who follow Jesus Christ. So when we read Old Testament, when we study Old Testament, we can see the form of a church, which means when through Moses, when God called people of Israel from Egypt, they were called out, exodus, nirgaman. So meaning of church also called out community. So we can see a form of structure of church even in Old Testament. And yesterday I told, in the earlier the church was not like char diwar ka building. They used to gather in house churches. Before that, where they used to gather? कई पेड़ के नीचे, जो जगह अच्छा लगा वहां they used to gather, which means history of Israel. They were traveling through the wilderness. मरुभूमि से जा रहा था, आराधना करने के लिए कहाँ था? टैबरनेकल, परमेश्वर का निवास स्थान, ऐसा बहुत चीजें था. So they used to gather outside. But in that sense, we can see the structure of church even there in Old Testament. And church and pastor, that structure also there in Old Testament. People of Israel, Moses, Aaron and Joshua, they were the leaders. So the structure is there even in Old Testament. Then God chose his men to guide his flock in due course of his time in history. So when we read the history of Israel, you can see God selected few people, God called few people, few leaders, and asked them to shepherd the flock. इस बहुत बड़ा भीड़ को चलाने के लिए, अगवा करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को नियुक्त किया. So Ephesians chapter 4 verse 11, there is a name, shepherds, नहीं है? who मतलब shepherd करके नाम है, चलाने वाला, चरवाहा.
those actions in history might be termed as the ministerial basis in the Old Testament. So इतना सारे बातें मैंने आप लोगों को बताया. This all shows that mission and ministry even there in present in Old Testament. समझ आया? इतने सारे बातें पढ़ने से सुनने से आपको क्या समझ आना था? पुराने नियम में भी सेवकाई और सेवा और मिशन है. समझ आया नहीं आया? Any doubt? Any doubt? Sir, this and shepherd we can say the pastors. Yeah. That we will study when I explain about all those titles. Then in New Testament, I think in New Testament no need to elaborate much. In New Testament, you know, before Jesus who came? जॉन द बपतिस्मा, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया, वो क्या बोल के आया? मेरे पीछे आने वाला का रास्ता सीधा करने के लिए मैंने आया हूँ. I came, that means he came to witness the light. Who was that light? Who is that light? Jesus Christ. So यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आकर सेवा किया, उनकी 12 चेला लोग के साथ सेवा का मतलब करने के लिए बोला. बड़ा आज्ञा, महान आज्ञा, the great commandment. Where it is written? Matthew chapter 28 में लिखा है. So from that it comes to Acts of the Apostles. Means प्रेरित लोगों का इतिहास में भी हम सीख सकता है सेवकाई को आगे ही वो लोग लेके चला था. Understood? So this is all about Old New Testament. So in New Testament we have the best and even in New Testament and the Old Testament the best role model of ministry. Who is that fellow or who is that? Or whom we can point? He is the role model of ministry. मिनिस्ट्री का सबसे अच्छा अगुआ उदाहरण कौन है? यीशु मसीह. बोला Jesus Christ himself. He came, he showed, he set an example and he said, do this till I come back. मैं जो दिखाया ये करते रहना जब तक मैं वापस. So न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट हो गया. उसका ये इस पीडीएफ में लिखा है जीसस द मिनिस्टर. यीशु मसीह का इट इज ऑल अबाउट द बायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट, हाउ ही डिड मिनिस्ट्री एंड ऑल. So when we study this subject, Jesus was not only focused on spiritual matters there, he was also focused on social reforms. लिख के रखना, social reforms. क्या हुआ? किसी ने सार करके बुलाया. मतलब सामाजिक रूप से कुछ परिवर्तन लेके आने के लिए भी यीशु मसीह मेहनत किया था. देन नेक्स्ट हेडिंग लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, मसीह सेवकाई का कैरेक्टर्स. या कैरेक्टर्स या फीचर्स ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री. ब्रैकेट में नीचे लिखना मत्ती अध्याय 28 का 18 to 20. अध्याय 28 18 to ब्रैकेट द ग्रेट कमीशन. द ग्रेट कमीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, मसीह सेवकाई का स्वभाव. द ग्रेट कमीशन. Someone read Acts chapter 1 verse 7 and 8. वहाँ लिखने के लिए भी है Acts chapter 1 verse 7 and 8. Even in yesterday's report कुछ लोग वचन तो नहीं लिखा, सिर्फ वचन लिख के छोड़ दिया. उन लोगों का रिपोर्ट वापस मिल जाएगा. मैंने बोला था when you are writing report you should mention the वचन भी. अगर उदाहरण मैंने बोला मैथ्यू चैप्टर 28 verse 18 to 20, पूरा वचन उसमें आना है. कुछ लोग नहीं लिखा है, सो वापस मिल जाएगा. अभी तो एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग करके फिर डालना. Acts chapter 1 verse 7 and 8 read. Said to them, it is not for
you to know time for the season that the Father has fixed by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. So, first one, witnessing Christ. Witnessing Christ. मसीह का गवाह बनना. विटनेसिंग क्राइस्ट. मैंने हर दिन नोट्स लेके आता हूँ, नोट से बोलने के लिए इधर आने के बाद और कुछ मिल जाता है. विटनेसिंग क्राइस्ट. Acts chapter 1 verse 7 to 8. What is mean by witnessing? मार्टूरियन और मार्टियर. मार्टियर हुआ करके बोलते हैं ना, शहीद हुआ. मार्टूरियन इन ग्रीक. शहीद किसके लिए? हमारे लिए. कौन बोला हमारे लिए? उसके लिए क्यों मरना है? थोड़ा उल्टा पुल्टा जिंदगी जियो, किसी ने मार डालेगा. विटनेसिंग क्राइस्ट. हाउ वी विटनेस क्राइस्ट? क्वेश्चन मार्क. कैसा हम मसीह का गवाह बन सकता है? हाउ वी विटनेस क्राइस्ट. क्वेश्चन डाल देना. उसके नीचे पॉइंट नंबर 1, प्रोक्लेमेशन ऑफ गॉस्पेल, किरिकमा. क्वेश्चन कहता है कैसा मसीह का गवाह हम बन सकता है. हाउ वी कैन विटनेस क्राइस्ट. how can we or how we can witness Christ. Point number 1, through proclamation of gospel. सुसमाचार का घोषणा करने से. And the Greek word for proclamation is kerygma. 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 Greek word kerygma. So first one, through proclamation, सुसमाचार घोषणा करने के द्वारा हम मसीह का विटनेस बन सकता है. So when we share gospel, what are the things we are sharing? God in death, resurrection. Huh? Jesus Christ, God, death, resurrection. Okay. And He's second God. Siraf, you will start from the birth of Jesus Christ. So when we share gospel, make sure it should start from the beginning and it should end with a question. When he comes, are we ready? हम किसी से सुसमाचार बताने के लिए मौका मिला तो शुरुआत से करना. इंसान का शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ परमेश्वर से रिश्ता हो गया, वहां से लेकर पूरा उसका बैठा लेके आकर बैठो जेनेसिस खोल कर वहां से लेकर शुरू मत करना. इसको समराइज रूप में बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमको आना है. मे बी थ्रू सॉन्ग्स. खुद का आदिवासी गानाओं में की द्वारा बहुत लोगों को सुसमाचार बता सकता है. और कुछ ब्लॉग लिखने से, अभी का बातें बोल रहा हूँ, फेसबुक में से और कुछ वीडियो बनाने से यू कैन शेयर. सिर्फ वो वाला गाना ये वाला गाना स्टेटस डालने से कोई फायदा नहीं है. पप्पा का इज्जत गिरते जाता है. बीच बीच में संदेश मिल जाता है किसको मिलना है. सो ये सब करने से हम सुसमाचार को लगभग एक दोस्त का, एक व्यक्ति का जीवन में, इफ यू आर शेयरिंग एटलीस्ट अबाउट 1 पार्ट फ्रॉम बाइबल टू 1 फ्रेंड, जीवन का मतलब है. मे बी आप जो डालने वाला गाने के द्वारा और आप डालने वाला वीडियो के द्वारा और क्लास के द्वारा या आपका प्रचार के द्वारा या कहाँ पे किसी एक फ्रेंड दुख होकर आपको फोन लगाया था, अरे चलो करके नहीं, उनको संदर्भ बनाकर उनको जैसा हम वो संदर्भ से कैसा मसीह हमको लेके आया. मतलब इसलिए मैंने बोला गॉस्पेल शेयरिंग इज कॉन्टेक्चुअल. जैसा कॉन्टेक्ट से हमको समझ आता है हम क्या करना है, निकल पड़ना सुसमाचार लेकर, अंत में मिशन सक्सेस होगा. वो व्यक्ति की कहानी अच्छा से समझ आएगा. सब वो व्यक्ति और सवाल पूछने लगा. दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन. देन इन द एंड ही विल से अरे
दिस इज ट्रूथ। तेरा जो परमेश्वर से मैं भी आराधना करता हूँ। चलो, समझ आया? सो विटनेसिंग क्राइस्ट थ्रू प्रोक्लेमेशन। सेकंड, थ्रू टीचिंग, डिडाके इन ग्रीक, DIDACHE, डिडाके, डिडाके, टीचिंग। फर्स्ट तिमोथी 3 वर्स 16 and 17, वचन लिखना रिपोर्ट में। पहला तिमोथी, सेकंड तिमोथी 3 का 16-17, 3 chapter 3 verse 16-17. So all scripture is breathed out by God and it is profitable for teaching. For what? For that the man of God will be equipped in every good work. Third one, fellowship, koinonia. Fellowship, koinonia, KOINONIA, koinonia. There are many verses for that, but I am mentioning 2-3 verses. Acts chapter 2 42-47, प्रेरितों का काम अध्याय 2 का 42-47, प्रेरितों का काम अध्याय 2 का 42-47। हाँ, प्रेरितों का काम अध्याय 2 First Corinthians 9 verse 9, 1 verse 9, 2 Corinthians 13-14. So when you are writing report, read those verses and at least give some explanation. उसके नीचे ये वचन किसके बारे में बताया, समझ आया? मूछ नहीं है क्या घुमा रहा हूँ? पॉइंट नंबर 3 हो गया ना? पॉइंट नंबर 4, सर्विस, डिडाकोनिया। सर्विस, DIDACONIA in Greek, didakonia. Service means serving others. Service or serving. Service, serving, seva, all this same. So total how many? 4. Next main heading, different patterns of Christian ministry. Different patterns, PATTERNS, patterns. Christian ministry. Right, Ephesians chapter 4 verse 11, the fivefold ministry. पूरा वचन उतारना वहाँ। वचन उतारने के समय एक एक नाम 1 1 2 3 4 ऐसा लिखना। एफेसियन का पत्री 4 का 11 वचन लिखना। वचन लिखने के समय ऐसा बना के लिखना, 1 अपोस्टल, 2 ऐसा एक नीचे 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 लिख के लाना, लिस्ट जैसा। अभी लिखो। हाँ, क्या हुआ?
एफिशिएंट का पत्री 4 का 11 फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री हेडिंग Write Ephesians chapter 4 verse 11. Fivefold ministry. And as you are writing, make point wise 1, 2, 3, 4, 5. First one, apostles. In Hindi, prerit. What is mean by prerit in Hindi? भेजना अच्छा करना जगह का नाम सिखाना और तो शिक्षा देना so first one apostles it comes from the Greek word apostolos प्रेरित संस्कृत से हिंदी में लिया तो संस्कृत में शायद प्रेरणा आता है प्रेरणा व्हाट इज मीन प्रेरणा प्रेरणा मीन्स कुछ सीखना किसी से सो प्रेरित या अपोस्टल्स इन ए सिंपल वे एक गुरु इसको ये जो व्यक्ति एक गुरु को मानता है वो गुरु का प्रेरणा से ही सब कुछ करने वाला वो गुरु कौन है इधर मतलब जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह का प्रेरणा पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ही सारी काम करने वाला व्यक्ति कौन है अपोस्टल ग्रीक वर्ड अपोस्टलोस so I will just explain and go and I will give you this note I have already sent ये पीडीएफ देख के रखना साइड में बाउंड्री है साइड में बाउंड्री वाला पीडीएफ में पॉइंट नंबर 5 से मैंने बोल रहा पूरा वहां नोट में लिख के रखो बिकॉज यू हैव टू राइट दिस एंड कम डोंट कॉपी पेस्ट बिकॉज ऑलरेडी इट इज इन पीडीएफ कॉपी पेस्ट किया हो जाएगा सो ये जो बात है एक पेपर लेकर हाथों से लिख के मुझे कल दिखाना अंडरस्टूड सो पीडीएफ ये है साइड में ऐसा बाउंड्री आता है आई हैव ऑलरेडी सेंड ऑल द पीडीएफ सारे पीडीएफ मैंने क्लास नंबर 1 के ग्रुप में डाल दिया उसमें साइड बाउंड्री वाला पीडीएफ में पॉइंट नंबर 5 फर्स्ट वन अपोस्टलोस या इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड अपोस्टलोस व्हिच मींस वन सेंड फॉर द वन हु सेंड फॉर्थ मतलब सेंड उनको किसी ने भेजा और ही इज एन एम्बेसडर और ही इज ए मैसेंजर उन्होंने एक मैसेंजर है और एक एम्बेसडर है एम्बेसडर मतलब कुछ चीजों का मुख्य व्यक्ति और या मतलब अभी आजकल ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना मोबाइल का वीवो का एम्बेसडर कौन है शायद एक कंपनी होता है वो कंपनी को दिखाने के लिए एक सिनेमा हीरो का रखते हैं वो लोग उसको एम्बेसडर बोलता है हाँ ब्रांड एम्बेसडर करके रखता है उदाहरण वहां चला गया तो अलग हो जाएगा उदाहरण मैंने देखा था मेरे हिसाब से वीवो का वो इस समय में आमिर खान था आमिर खान ही आकर वीवो का नया मोबाइल आया तो बताते थे ये नया मोबाइल निकला मतलब एक ब्रांड होता है ब्रांड का एम्बेसडर क्रिश्चियनिटी एक ब्रांड है तो ब्रांड का एम्बेसडर है अपोस्टल ये अपोस्टल का जीवन से ही क्रिश्चियनिटी क्या है पूरे दुनिया में सबको देख सकता है रिफ्लेक्शन सो थ्रू द लाइफ ऑफ अपोस्टल एवरीवन कैन सी व्हाट इज ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी देन एन अपोस्टल इज द वन हु सेंट आउट ऑन ए स्पेशल मिशन एक प्रेरित को परमेश्वर यीशु मसीह ने एक स्पेशल पर्टिकुलर सेवा के लिए भेजा है सो एन अपोस्टल इज द वन हु वाज सेंट आउट फॉर ए स्पेशल mission then the scripture shows that 3 different orders of apostles thus Christ himself is spoken of an apostle
were holy brethren, partaker of the heavenly calling. So apostles are partaker or participants in heavenly calling. और स्वर्गीय बुलाहट में शामिल हुए व्यक्ति हैं प्रेरित. Then after that you will see many more lines here. It is all about 12 apostles. Who are the 12 apostles? 12 चेला लोग. आप लोग what you have to do, you have to write this as it is. जैसा इधर है वैसे ही लिखना. So I am giving the explanation. समझ आया? लिखना, पीडीएफ बनाना नहीं, लिखना. क्योंकि पीडीएफ कैसे बनाएगा? कॉपी पेस्ट. वो सिस्टम नहीं चलेगा. एक पेपर किताब में लिख के कल सुबह दिखाना. Then second one, prophet, mouthpiece of God, नबी. फेसबुक में मैसेंजर करके क्या पे पता है? मैसेज डालने के लिए पता है? सो प्रोफेट का मीनिंग है मैसेज. हाँ, वहाँ पहले डब्बा में ही है. In Greek, the word for prophet is prophetess. 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 Read Acts chapter 21 verse 10. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judah. So in Bible, if you read, there are many verses which points that even in 1 Corinthians chapter 12, it is mentioned different gift that we receive. In that also it is written prophetic ministry. Or when we look into Old Testament also we can see prophetic ministry. And most of the time when prophetic ministry took place, when people are going away from God, when people are not obeying the word of God, who came? Or God sent prophet with the word of judgment. But आजकल prophets कौन है? दुबई में जाएगा, घर पे टीवी है, उसके नीचे आप लोग सोता है. ये सब बोलने वाला लोग क्या बन गया आजकल? Prophet बन गया. So in Old Testament and in New Testament, whenever you read, when we compare the Old Testament period and our present context, both are same. दुनिया पूरा कहाँ है? पाप में है. सो इस पाप का दुनिया में उस समय में परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए नबियों को भेजा था. मतलब तुम लोग पाप करके जी रहा है, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, कम बैक, रिपेंट. दिस वाज द मेन मैसेज ऑफ प्रॉफिट्स इन ओल्ड टेस्टामेंट. हमने पढ़ा था ना ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स का. सब लोगों का मुंह से क्या निकल के आया? जजमेंट आएगा, न्याय आने वाला है, जजमेंट इज कमिंग, कम बैक, रिपेंट. This is what all the prophets said. And if you come back, you will get these blessings. If you are not coming back, ये श्राप तुम लोगों के ऊपर आएगा. मतलब वापस आया तो ये आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो this was the main duty of prophet and this was the original functions of prophetic ministry. But when we compare this with our present context, society is same, समाज तो सेम पाप में ही है और पाप करते जा रहा है, फिर भी प्रोफेसी कैसा आ रहा है? कहाँ पर एक व्यक्ति किसी का गलत को बोला तो बोला, नहीं तो ज्यादातर क्या है? घर का रास्ता का
रूट बताता है, मतलब इधर से मोड़ लेकर इधर गया तो तेरा घर आता है, दिस इज द रूट फॉर योर होम, एंड आपका घर पे वो है और आपका नाम रमेश है। मतलब प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो डिवाइन मिनिस्ट्री था उसको ही दूध में पानी मिलाने का समय के जैसा मिलाप कर दिया। मतलब एक डिवाइन मिनिस्ट्री को, इट वाज अ डिवाइन मिनिस्ट्री अपॉइंटेड बाय गॉड, एंड व्हाट पीपल डिड, दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। जल्दी फेमस होना है तो क्या करना पड़ेगा? वायरल होना है तो क्या करना पड़ेगा, वो मैंने पूछा। आजकल मसीह लोगों के बीच में कल से लेकर डाल दो प्रोफेट रमेश, थोड़ा थोड़ा 2 दिन लोग देखेगा, और कोट सूट पहनकर 2 दिन फोटो भी डालना, कल से लेकर कौन है। सो व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट, आई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मेरा पापा भी मुझे बताते थे, गिफ्ट अगर आपकी मेहनत को देखकर, आपकी जरूरतों को देखकर किसी ने कुछ दिया, वो क्या बनाता है, क्या है वो गिफ्ट। इनको मिला, रमेश को मिला कर पंकज जाकर खुद का पैसा से जाकर खरीद के लेके आया, वो बोला ये भी गिफ्ट है। क्या वो गिफ्ट है? क्यों नहीं है? गिफ्ट इज समथिंग यू गेट एन अप्रिसिएशन फॉर द टास्क विच यू आर डूइंग फेथफुली। आपने कुछ काम विश्वास योग बनकर किया, इसलिए वो काम का जरूरत था, इसलिए परमेश्वर आपको क्या दिया? वो भविष्यवाणी क्या होगा, वो किया कर आप भी जाकर खुद किया तो दैट इज नॉट गिफ्ट, दिस इज व्हाट हैपनिंग। यही आजकल हो रहा है, किसी ने किया हुआ फेमस हुआ, इसलिए मैं भी करता हूं फेमस। हाथ ऐसा किया तो गिर जाता है, उफ किया तो गिर जाता है, या वहां बैठने वाला बंदा का नाम इधर खड़े होकर बताते, इसका पीछे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मतलब सीक्रेट एजेंट्स है, बहुत सीक्रेट बातें हैं। ये अनपढ़ या सच बताया तो दे आर यूजिंग द सिचुएशन ऑफ ए पर्सन एंड मैनिपुलेटिंग इट। मतलब एक टूटा हुआ व्यक्ति वहां आकर बैठा तो कुछ कर उनसे बात कर या जिंदगी पर ये है, वही है इसलिए वहां आया। मतलब मैनिपुलेशन ऑफ इवन स्पिरिचुअल गिफ्ट। सो व्हाट इज द प्रोफेसी और प्रोफेट? माउथ पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मुंह है। कौन? भविष्यवक्ता। ये बोलते हुए आज बहुत लोग निकला है, बहुत, मतलब बहुत, कहाँ पे भी देखो प्रोफेसी है और कुछ है का ही नहीं है, प्रोफेट प्रोफेट प्रोफेट। केरल में भी है, ऐसा सोचा मत मैंने बाहर का उधर, केरल में बहुत झूठा भविष्यवक्ता लोग है। एंड बाइबल इटसेल्फ सेज दैट एंड डेज में कौन आएगा? झूठा भविष्यवक्ता आएगा। नेक्स्ट, इवेंजलिस्ट, एंड द ग्रीक वर्ड इवेंजलिस्टस। इवेंजलिस्टस evangelistus, evangelistes, listes, evangelistus, the one who proclaims the gospel. इसका मीनिंग the one who proclaims the gospel. He or she will correct with compassion. Compassion मतलब प्यार से, अंडरस्टैंडिंग होकर लोगों को समझाते हुए उनको मसीह में लेके आता है, सुसमाचार बताते हुए। So evangelist is the one who proclaims the gospel out of compassion, out of passion to people. They encourage people in hope, with hope and ग्रेट बिलीफ सिस्टम विच दे आर कमिंग फ्रॉम। मतलब उन लोगों का विश्वास, सारे बातें उन लोगों को एक्सप्लेन करते हुए अगुवाई करता है। एंड द लास्ट वन, टीचर्स, डिडास्कलोस। डिडास्कलोस इन ग्रीक, डिडास्कलोस, डिडास्कलोस। डिडास्कलोस। सो 5 चीजों को, 5 अलग अलग ऑफिसर्स के बारे में मैंने बताया। एंड द क्वेश्चन, क्या ये 5 का 5 एक व्यक्ति को मिलेगा?
नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? फिर क्यों नहीं बोला? Do you think that a person or one person will get these 5 ministries at a time, or separate he will get? separate. मिल भी सकता है सर। इसमें से मैंने एक मिस हो गया क्या? शेपर्ड मिस हो गया। लास्ट वन shepherd write down. Poimen, Poimen. 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 Do you think that one person will get all these gifts or all these offices in mission field? एक इंसान को इतना सारे सेवकाई का पोजीशन मिल सकते हैं या नहीं मिलेगा? According to my Who can become a leader? According to your point? can be red shepherd. Shepherd. I am asking, now we covered 5-fold ministry. There are 5 different positions, officers. And my question is, do you think these 5, understand these 5 things are different gifts? Do you think that these 5 gifts will come together for in your life or in my life or in a person's life? नो सर, In one person. Why? In one person. Why no? क्योंकि बाइबल में भी किसी को ऐसा नहीं मिला और एक इंसान को इतना ज्यादा वो नहीं मिल सकता सर। क्यों नहीं मिल सकता? हर चीज के लिए एक इंसान को चुना गया है। These 5 things will comes under one thing. In my opinion, apostles. Yes, sir. Apostle is the one who travels, who shares the word of God, who equip the church, who give the hope, and who prophecy करता है. That's why we all call that apostle. इसलिए बहुत अच्छा है. अभी कुछ लोगों का नाम के सामने अपोस्टल आना भी शुरू कर दिया. हाँ, अपोस्टल संगे. That's why nowadays the trend, I think, slowly it is going to apostle. Under this title, you have all 4 things. So, an apostle, according to the Bible in the New Testament, प्रेरित पौलुस, apostle पौलुस, और बाकी जितना प्रेरित लोग हैं, they used to travel. You can write these things. They used to travel. They used to share the word of God. They used to plant the church. They used to revisit the church. And they used to encourage the believers. They used to get the report. And they used to shepherd the church as a pastor. ये pastor shepherd करके है ना, इसको pastor करके बुला सकता है, pastor. So, becoming an apostle means, according to the context, God will ask you to do many things. समझ आया? God will ask you to do many things. And in a secular field, you can see leadership will come in 3 ways. Traditional way, मेरा बाप लीडर था इसलिए मुझको आया. सेकंड, करिश्मेटिक वे, मुझको कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं लायक हूँ, मैं कर सकता करके लोग समझकर मुझे लीडर बनाया. थर्ड वे, मेरा डिग्री था इसलिए लीडर बनाया. In a secular way, I am saying. Taking that into the spiritual way, traditional way, बहुत लोग लीडर बना है अभी. पादरी, पापा पादरी था इसलिए बेटा भी, क्योंकि उनका सेवकाई को चलाना है और किसी के हाथों में देने के लिए मन पसंद भी नहीं होगा. So even in a spiritual way, we can say the leadership comes in a traditional way. Someone's father was pastor and I became pastor. Then someone had a spiritual or in a theological degree, that's why they became leader. And the third way, he or she is eligible in the eyes of God and in the eyes of people. So without degree, without background, they became leader. You understood what I said? Leadership पे 3 तरीका में आता है. इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ
हमारा बैकग्राउंड से इसका कुछ लेना देना नहीं है। एट प्रेजेंट जो जगह पर मैं हूँ, एट प्रेजेंट वेयर आई एम and in which ministry I am involved, maybe studying, maybe teaching, maybe driving or singing song, I don't know from which stage God will give me the next stage. स्टेज मतलब मैं बोल रहा हूँ कौन सी जगह पर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, वहां मैं मेरा बातें ठीक ठाक से करने से लोगों का मन का अंदर क्या सोचाता है, नेक्स्ट मीटिंग में किसको बुलाओ। मैं कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ। सो इफ यू आर कॉल्ड फॉर ऑन स्मॉल मीटिंग हियर एंड यू थॉट अरे स्मॉल मीटिंग फेमस होना तो नहीं हो सकता क्योंकि छोटा मीटिंग है, कुछ तो छाप के आ जाएंगे, भजन संगीत 23 हो वह मेरा चरवा है, ये बोल के आ गया तो फिर वो बंदा भी नहीं बुलाएगा, वहां बैठने वाला भी सीधे सीधे नहीं सुनेगा। सो इफ यू वेल प्रिपेयर्ड एंड छोटा सा मौका को बहुत अच्छा से उपयोग किया, वहां बैठने वाला एक व्यक्ति का मन में परमेश्वर क्या सोच डालता है, अरे ये जो व्यक्ति को कल हमारा कलीसिया में बुलाएंगे, 3 लोगों के सामने से 30 बन गया। ऐसे ही बड़ा होता है, नहीं तो क्या होना है हाथों में पैसा, नहीं तो बाप बड़ा पादरी होना है। 2 तरीका है। कल शाम को प्रचार नहीं किया, बाइबल पढ़ाया था, अभी मुझे याद आया, शाम को प्रचार ही होना है। शायद आज अमर सिंह का था ना, उनका ड्यूटी है आज का प्रचार आप ही करना इधर, अभी याद आया। सो मैं क्या बोल रहा था, हमारा जैसे एक आम आदमी एक मसीह सेवका के लिए निकला हुए व्यक्ति को सबसे मुख्य बात है सोचना, मेरा परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर मुझे कैसा इस्तेमाल करने के लिए लेकर खड़ा किया, वहां मैं कैसा हूं, मेरा फ्यूचर वहां से ही आगे है। सो for people like us, I am including me, I am saying, even my father he is not a famous pastor. उन्होंने बहुत कलीसिया का स्थापना किया, सब किसी को छोड़कर जाने वाला व्यक्ति था, इसलिए मुझे गुस्सा आया। इतना कलीसिया स्थापना करने के बाद उसका मालिक बैठे बना तो मैं भी क्या बन सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ? I can also become a leader because he planted many churches in many places. And if he is the in charge of those churches even today, वो सेंटर पास्टर बन गया, मेरे सेंटर पास्टर का बेटा हूँ, कुछ तो इज्जत मिल जाता है मुझको भी। मेरा पापा का मिनिस्टर ऐसा नहीं था। He used to select by saying this I will conclude today's class. पापा ने क्या करता था, उन्होंने एक जगह पर जाकर एक जगह ढूंढ लेता है, उनको स्टिचिंग आता है, सिलाई, स्टिचिंग मशीन 20-30 मशीन पड़ा है, सब लेकर जाता है, एक गांव सेलेक्ट करता है, वहाँ एक रूम हम रहने के लिए रह लेता है, वहाँ उसके साथ साथ एक हॉल भी ले लेता है, वहाँ मशीन डाला था। गांव में फायदा यह है 10वीं कक्षा पास होने के लिए इंतजार में है माता पिता लड़की लोगों को शादी करवाने के लिए, तो छोटी लड़की लोगों का पप्पा का सोच यह था, उनको छोटी उम्र में शादी करने के लिए भी रोकना है, साथ ही साथ उनको छोटा काम भी सिखाया, तो वो जिससे शादी करके जाएगा वो घर पे भी कुछ तो कमा कर खुद का खर्चा। सो दिस वाज ही सेइंग, ये मेरा एम नहीं था, मुझे गुस्सा आता था, घर पे पूरा लड़की लोग ही घूमते हैं सुबह से लेकर, ये लोग सीखने के लिए आता है। सो ऐसा एक गांव चुनकर वहां उन लोगों को सिखाकर उनकी समस्याओं को सुनकर चलो हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास में प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कुछ तो कुछ फायदा होता है। तब वो क्या करते, सुबह आकर फिर बोलते हैं पास्टर मेरे लिए, धीरे 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 वो लोग कहाँ आ जाता है, विश्वास में आ जाता है। वहां वो हॉल पापा वहां से निकलने से वो क्या बन जाता है, कुछ छोटा गलीचा बन जाता है। वहां ही हमारा जैसा छोटा लड़का लोग होगा, उनको कहाँ पे ट्रेनिंग में भेजकर वहां उनका हाथों में सौंपने के बाद पापा फिर नया जगह ढूंढता है। ऐसा ही था उनका सेवक है, इसलिए मुझको दोस्त लोग नहीं है, इधर थोड़ा दिन रुककर दोस्त बनाने का समय फिर पैकअप बन जाता है, फिर पैकअप बन जाता है, फिर पैकअप। कभी कभी स्कूल तो सेम होगा, जगह बदल के जा रहा था। सो my father used to go and select one village and used to select one home, and he is very good in stitching, tailoring. So he will make a small setup of tailoring classes and all. That's how he share the word of God. That's how the church he will plant and he will move out. फिर कभी कभी उनको फोन करके पूछते हैं कैसे चल रहा है, बस, क्योंकि उनका हाथों में देने के बाद हम फिर जाकर उनका ऊपर बैठा तो उसको कैसे लगेगा। After giving the leadership to someone, if we are going and standing or sitting upon their head, what they will think? कि पूरा का पूरा छोड़ना नहीं चाहता है, फिर भी मन तो इधर ही है,
वो पापा पूरा का पूरा छोड़ देते थे, मतलब वो लायक करके समझने के बाद दे देता है। जैसा पौलुस ने तिमोथी को लेके अगर सौंपा वैसे ही था उनका। सो इन द सेम वे इन विच प्लेस हाउ वी आर दैट डिमांड्स आर दैट शोज द फ्यूचर। समझ आया होगा? जो जगह पर हम कैसा है दैट शोज, दैट्स व्हाई व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर सब्जेक्ट, कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिश्चियन मिनिस्टर। सो टुडेस क्लास सबको समझ आ गया? सो पीडीएफ ये है, ये लिखना है, इसमें शपर्ड नहीं है। शपर्ड वो इंटरनेट में कहाँ से ढूंढ के लिख देना, नहीं तो मैं भेजूंगा ढूंढ। सर पीडीएफ पे ना हाँ